morning students. I am Babita from Motilal Nehru Public School. So in last class we have already discussed about cell and its basic functions. In today's class we will discuss about that cell have different shape and size and they can vary in shape and size also. So firstly we will talk about the smallest cell. The smallest cell, that is mycoplasma. It is a bacteria. Mycoplasm is bacteria and it is our smallest cell. It is 0.3 nanometer. So our smallest cell is mycoplasm and it is a bacteria. Our largest cell is ostrich egg. Largest cell is ostrich egg. And now longest cell is, if we will talk about our longest cell, that is nerve cell. Our smallest cell is mycoplasm, largest cell is ostrich egg and longest cell is nerve cell. So we can say that cell also differ in shapes and size. So on the basis of shape we can say that cell have structure of disc-like, polygonal, cuboid, thread-like or irregular. Shapes can be varied, right? They can be cuboid, polygonal, thread-like and also irregular. So cell can be varied in terms of shape and size. In last class we have discussed about prokaryotic and eukaryotic cells. So today we will discuss about prokaryotic cells in details. Prokaryotic cell. What is prokaryotic cell and eukaryotic cell? I already have discussed about it last class. Prokaryotic cell is our single cell and single cell में हमारे क्या आते हैं? सिंगल सेल कौन कंटेन करता है? बैक्टीरिया. प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंगल सेल होते हैं और बैक्टीरिया उनमें कंटेन करते हैं. They didn't have well defined nucleus. They didn't have well defined nucleus. So प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल सेल होते हैं. सिंगल सेल में कौन आता है? हमारा बैक्टीरिया आता है. दूसरा क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. अब अगर इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो फिर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कौन कंटेन करता है, उसको कौन कंपोज करके रखता है? ये बात सोचने की बात है. तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना होने से इनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कंटेन करके रखते हैं न्यूक्लियोइड. Nucleoid. What is nucleoid? It contains all the genetic material of prokaryotic cell.
contains genetic material, and here is a circle, that is genomic DNA, and this genomic DNA, we can say that plasmid. ये हमारी सेल है जिसमें न्यूक्लियोइड हो गया, तो बाहर ये एक सर्कुलर डीएनए है जिसको हम जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोमिक डीएनए। और इसी जीनोमिक डीएनए को हम प्लाज्मिड बोलते हैं। जीनोमिक डीएनए या प्लाज्मिड का फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू antibodies. So this is our cell and this is genomic DNA या plasmid, and plasmid function क्या करता है? It provides resistance to antibodies. One more thing is, here is like a cell membrane, but in prokaryotic cell we जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलते हैं? मेसोसोम। सेल मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं मेसोसोम। एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ मेसोसोम? इट प्रोवाइड्स एनर्जी in the form of ATP. Now, what is the full form of ATP? Adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. So, this is our prokaryotic cell. This is a thread-like structure. This is mesosome. ये क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है एटीपी के फॉर्म में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. दिस इज न्यूक्लियोइड which contains genetic material of cells, and this is a circular genomic DNA. We can say that plasmid, and plasmid function क्या करता है? It provides resistance to antibodies. So this is our prokaryotic cell. Next, in prokaryotic cell or in bacteria, there is a pigment. बैक्टीरिया में क्या होता है? एक पिगमेंट होता है, और ये पिगमेंट क्या काम करता है? ये प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है कलर. प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्रोमेटोफोर. पिगमेंट क्या है? क्रोमेटोफोर, एंड इट प्रोड्यूस कलर. ये क्या प्रोड्यूस करता है? कलर प्रोड्यूस करता है. बैक्टीरिया में पिगमेंट होता है क्रोमेटोफोर जो कलर को प्रोड्यूस करता है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स होते हैं, हम थोड़ा सा उनके बारे में देखते हैं. राइबोसोम्स ये होते 70S, मतलब इनका साइज क्या है? राइबोसोम्स का प्रोकैरियोटिक सेल में 70S, and here S means is segmentation coefficient. Size of ribosomes in eukaryotic is 80S. ठीक है? प्रोकैरियोटिक में ये होता है 70S का इनका साइज, और S से हमारा होता है सेगमेंटेशन कोफिशिएंट. और यूकैरियोटिक सेल में अगर हम बात करें तो उसमें राइबोसोम्स का साइज होता है क्या? 80S, और S का मीनिंग क्या है? सेगमेंटेशन कोफिशिएंट. नाउ बैक्टीरिया कैन बी 2 टाइप. बैक्टीरिया हमारे 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज ग्राम पॉजिटिव, and second one is gram negative. Gram positive and gram negative, these are our 2 types of bacteria. Gram positive is they can take up
इजिली टेक अप कर लेते हैं। ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं? दे कांट टेक अप स्ट्रेन्स, ये स्ट्रेन्स को नहीं टेक अप करते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो टाइप के बैक्टीरिया हैं। जो एक ग्राम पॉजिटिव है वो क्या करते हैं? स्ट्रेन्स को ले लेते हैं, और ग्राम नेगेटिव क्या है? स्ट्रेन्स को नहीं लेते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रिल के बारे में। फ्लैजिला क्या होता है? ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जो हमारी हेल्प करता है लोकोमोशन में। बैक्टीरिया में हमारी 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं। बैक्टीरिया में हमारी 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज फ्लैजिला। फ्लैजिला, पिलाई, एंड थर्ड वन इज फिम्ब्रिल। Flagella is present in bacteria and it helps in लोकोमोशन। फ्लैजिला किसमें हेल्प करता है? हमारी लोकोमोशन में हमारी हेल्प करता है। पिलाई हमारी हेल्प करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पिलाई हमारी किसमें हेल्प करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एंड फिम्ब्रिल हेल्प करता है अटैचमेंट के लिए रॉक्स इन स्ट्रीम्स। ये किसमें हेल्प करता है? बेसिकली अटैचमेंट ऑफ रॉक्स इन स्ट्रीम्स। बैक्टीरिया में हमारी 3 चीजें होती हैं, फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रिल। फ्लैजिला हेल्प करता है लोकोमोशन में, पिलाई हेल्प करता है बैक्टीरिया की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फिम्ब्रिल हेल्प करता है अटैचमेंट में। सो नेक्स्ट, एंड दे हैव ब्रिस्टल-लाइक स्ट्रक्चर। ब्रिस्टल-लाइक स्ट्रक्चर। पिलाई, फिम्ब्रिल एंड फ्लैजिला है ब्रिस्टल-लाइक स्ट्रक्चर। Next is bacteria have 3 outer layers, or we can say 3 cell wall, but 3 outer layers are there, that are glycocols, cell wall and plasma membrane. Glycocols, cell wall and plasma membrane. आउटर लेयर होती है ये हमारी। ग्लाइकोकोल्स क्या होती है? आउटर लेयर होती है। सेल वॉल होती है हमारी सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मीनिंग होता है कि ये कुछ चीजों को ही अपने अंदर से पास होने देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है थर्ड वन इज। अब ग्लाइकोकोलस लूजली पैक्ड हो सकते हैं और टाइटली पैक्ड भी। अगर ये लूजली पैक्ड है तो हम इनको बोलते हैं स्लाइम, और अगर ये टाइटली पैक्ड है तो हम इनको बोलते हैं कैप्सूल। नेक्स्ट हमारा है, सो दीज आर 3 लेयर्स ऑफ बैक्टीरिया, ग्लाइकोकोलस, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकोलस आउटर होती है, अगर ये लूजली पैक्ड है तो हम इसको स्लाइम बोलते हैं, अगर ये टाइटली पैक्ड है तो हम इसको कैप्सूल बोलते हैं। सेल वॉल हमारी सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल